کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ امراء وزراء اور نوکروں چاکروں کے ساتھ دارالسلطنت سے شکار کو نکلا۔ یہ لوگ کئی دن تک جنگل میں شکار کھیلتے رہے۔ ایک روز یوں ہوا کہ بادشاہ کے سامنے چند ہرن نمودار ہوئے اور تیزی سے بھاگنے لگے۔ بادشاہ نے تنے تنہا ان کے تعاقب میں گھوڑا ڈال دیا۔ ہرن ایسے تیز رفتار تھے کہ گھوڑا تیز دوڑانے کے باوجود بادشاہ کا گھوڑا ان تک نہ پہنچ سکا۔ بادشاہ تیر پر تیر چلاتا رہا لیکن کوئی بھی تیر کاری نہ لگا۔ ہرن لگاتار بھاگتے رہے اور بادشاہ ان کے پیچھے گھوڑا دوڑاتا رہا۔ اب اسے محسوس ہوا کہ اپنے ترکش کے سارے تیر چلا چکا ہے۔ خالی ترکش کے ساتھ اب ہرنوں کا تعاقب فضول تھا۔ اس پر تکلیف دہ بات یہ تھی کہ بادشاہ اپنے ساتھیوں کو کئی کوس پیچھے چھوڑ کر آگے نکل آیا تھا۔ ہرنوں کو مار گرانے کی دھن میں وہ یہ بھول گیا کہ وہ کس راستے پر جا رہا ہے۔ اب اسے خیال آیا کہ یہاں سے واپسی کیسے ممکن ہوگی۔ سامنے خاردار جھاڑیاں تھیں یا جنگلی درختوں کے جھنڈ تھے۔ دور دور تک راستے کا کوئی نشان نہ تھا۔ اس نے ادھر ادھر بہت نظر دوڑائی لیکن کہیں بھی کوئی آدمزاد دکھائی نہ دیا۔ اب وہ تھا اور اس کا گھوڑا۔ جب گھوڑے کی ٹانگوں پر اس کی نظر پڑی تو یہ دیکھ کر دھک سے رہ گیا کہ کانٹوں بھرے جنگل میں دوڑتے ہوئے وہ بری طرح زخمی ہو چکا ہے اور اس کا بے تحاشا خون بہہ رہا ہے۔ اس حالت میں وہ گھوڑے کو دوڑا بھی تو نہ سکتا تھا۔ البتہ اسے تسلی تھی کہ اس کے نیام میں تلوار موجود تھی جس سے وہ وحشی جانوروں کا مقابلہ کر سکتا تھا۔ دن ڈھل چکا تھا۔ اس نے زخمی گھوڑے کی باگ ہاتھ میں لی اور پیدل ہی آگے بڑھنے لگا۔ جھاڑیوں میں الجھتا، گھنے درختوں کے درمیان اپنا راستہ بناتا، جنگل کے خونخوار جانوروں کی دہاڑ چنگھاڑ سنتا، ان سے بچتا بچاتا وہ آگے بڑھتا گیا۔ اس نے 2 دن اور 2 راتیں سفر میں گزاریں اور بالآخر جنگل سے باہر آنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس دوران اس نے کچھ کھایا پیا نہ تھا۔ جب تک جنگل میں تھا اسے کھانے پینے کا کوئی ہوش نہ تھا۔ اب جو ویرانے سے باہر نکلا تو اسے بھوک پیاس نے ستانا شروع کر دیا۔ پیاس تو اس نے ایک جوہر سے چند چلو پانی پی کر بجھا لی، البتہ بھوک مٹانے کا کوئی سامان نہ تھا۔ جنگل سے نکل کر ابھی وہ 3 کوس ہی چلا ہوگا کہ اسے لہلہاتے کھیت نظر آئے۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا کیونکہ وہ بیابان سے نکل کر انسانوں کے جہان میں آ گیا تھا۔ مسلسل سفر اور بھوک پیاس کی شدت کے باعث اس کی شکل و صورت بہت بدل چکی تھی۔ درختوں اور جھاڑیوں میں متواتر الجھنے کی وجہ سے اس کا لباس بھی کہیں کہیں سے پھٹ گیا تھا۔ اس کی ظاہری حالت کو دیکھ کر کسی کو بھی یہ اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ بادشاہ ہے۔ چلتے چلتے اسے خربوزوں کا ایک کھیت نظر آیا۔ اس نے سوچا بھوک مٹانے کی ایک صورت تو نکلی۔ پکے ہوئے خربوزوں کا رنگ اتنا عمدہ اور خوشبو اس قدر تیز تھی کہ ان سے کھیت کی ساری فضا دہک اور مہک رہی تھی۔ بادشاہ کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک کسان کھیت کے سرے پر کھڑا سخت پہرا دے رہا ہے۔ اس کے روب و داب کا یہ عالم ہے کہ کھیت میں کسی آدمی یا مویشی کا داخل ہونا تو کجا، وہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ بہرحال بادشاہ نے بھی اپنے جی میں ٹھان لی کہ وہ ہر قیمت پر خربوزوں کے 2-4 دانے حاصل کر کے رہے گا۔ وہ گھوڑے کی باگ ایک درخت سے اٹکا کر کسان کے پاس پہنچا۔ رسمی سلام و دعا کے بعد بادشاہ نے اسے پوچھا، یہ خربوزے کس کے ہیں؟ میرے ہیں، اس شخص نے جواب دیا۔ کیا انہیں فروخت کرو گے؟ بادشاہ نے کہا۔ نہیں، یہ فروخت کے لیے نہیں ہیں، کسان نے گرج کر جواب دیا۔ تو پھر کاہے کے لیے ہیں؟ بادشاہ نے پوچھا۔ تم کیوں پوچھتے ہو؟ کسان اپنے مخصوص گرجدار لہجے میں بولا۔ بھائی، میرا جی چاہتا ہے کہ قیمت دے کر تم سے 2-4 خربوزے لے لوں۔ بادشاہ نے قدرے نرمی سے کہا۔ نہیں، ہرگز نہیں، تم تو کیا، یہ خربوزے کوئی بھی نہیں لے سکتا، بلکہ خود میں بھی نہیں لے سکتا، کسان نے زیادہ کرخت لہجے میں جواب دیا۔ تو پھر انہیں کیا کرو گے؟ بادشاہ نے پوچھا۔ دیکھو، یہ خربوزے میں نے فقط بادشاہ کے لیے بوئے ہیں اور وہی انہیں کھا سکتا ہے۔
इसी के लिए मैंने रात दिन पहरा देकर ये फसल परवान चढ़ाई है। किसान बोला, भाई जितनी कीमत तुम कहोगे मैं दूंगा, ज्यादा नहीं तो एक ही खरबूजा तोड़कर मुझे दे दो। मैं एक मुसाफिर हूं और कई दिन से सफर में हूं, मुझे सख्त भूख लगी है, खुदारा मुझ पर रहम करो। बादशाह ने नरमी से कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, अगर तुम ऐसे ही मालदार हो तो जाओ मंडी में, वहाँ तुम्हें बहुत खरबूजे मिल जाएंगे। वहाँ एक से एक बढ़िया माल पड़ा है। मैं अपने खेत के खरबूजे किसी को नहीं दूंगा। एक बार कहजू दिया कि ये सिर्फ और सिर्फ बादशाह के लिए हैं। किसान गर्ज कर बोला। बादशाह ने एक और सवाल कर दिया, अगर बादशाह तुम्हारे ये खरबूजे कबूल ना करे तो फिर क्या करोगे? ना करे कबूल, मुझे इसकी क्या परवाह हो सकती है। कबूल कर ले तो ठीक, ना करे तो उसकी भी ऐसी की तैसी। किसान बरहम होकर बोला। अब बादशाह के पास इसके सिवा कोई चारा न था कि भूखे पेट वहां से रुखसत हो जाए। वो कोस भर चला होगा कि उसके साथी उसे तलाश करते करते आ पहुंचे। बादशाह दारुल सल्तनत में वापस आ गया। किसान से मुलाकात का वाकया जब भी उसे याद आता वो दिल ही दिल में हंसता। वो शिद्दत के साथ किसान की आमद का मुंतजिर था। एक दिन दरबार लगा हुआ था। उमरा, वुज़रा और सल्तनत के बड़े बड़े हुकाम बादशाह की खिदमत में हाजिर थे। शाही चौबदार, दरबान और पहरेदार होशियारी से अपने अपने फराइज अंजाम दे रहे थे। इतने में बादशाह की नज़र सदर दरवाजे की तरफ उठी तो उसने देखा कि एक किसान गधे पर एक बहुत बड़ी बोरी लादे खड़ा है। दरबान उसे अंदर आने से रोक रहा है, लेकिन वो दरबार में दाखिल होने पर इसरार कर रहा है। बादशाह ने चौबदार को हुक्म दिया कि फिलफौर जाओ और दरवाजे पर खड़े शख्स को उसके गधे समेत यहाँ ले आओ। इस हुक्म के सुनते ही वो किसान को दरबार में ले आया। किसान ने बादशाह के सामने आते ही सीना तान कर हाथ माथे पर ले जाकर खालिद देहाती अंदाज में अस्सलामु अलैकुम कहा। बादशाह ने उसके सलाम का जवाब देते हुए उसे पूछा, इस बोरी में क्या है? किसान ने कहा, ये खरबूजे हैं, मैंने सिर्फ आपके लिए बोए थे। जब पककर तैयार हो गए तो बोरी में भरकर यहाँ ले आया। अब चाहता हूँ कि आप उन्हें कबूल कर लें और मुझे वापस जाने की इजाज़त दें। देखो, अगर मैं तुम्हारे खरबूजे कबूल ना करूँ तो फिर क्या करोगे? बादशाह ने सवाल किया। इस पर किसान के दिल में खटका पैदा हुआ कि ये सवाल तो पहले भी कोई शख्स मुझसे कर चुका है। उसने दिल में सोचा। उसे खेत में पेश आने वाला वाकया याद आ गया। गौर से बादशाह की तरफ देखा तो उसका चेहरा मोहरा, नाक नक्शा बिल्कुल उसी शख्स का सा लगा जो उसे खेत में मिल चुका था। बादशाह ने किसान को सोच में गुम पाया तो उसने अपना वही सवाल दोहराया, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? मैंने तुमसे कहा है ना कि अगर मैं ये खरबूजे कबूल ना करूं तो फिर क्या करोगे? किसान बिला झिझक बोला, तो फिर वही करूंगा जो इससे पहले खेत में कह चुका हूं। इस जवाब पर बादशाह मुस्कुराया और उसने हुक्म दिया कि बोरी में से खरबूजे निकाल लिए जाएं और उसमें अशरफियाँ और जवाहरात भरकर किसान को लौटा दी जाएं। किसान ने अपने खास अंदाज में बादशाह का शुक्रिया अदा किया और गधे पर बोरी रखकर खुशी खुशी दरबार से वापस हुआ। जब किसान रुखसत हो गया तो वजीर सल्तनत आगे बढ़ा और सलाम के बाद अर्ज गुजार हुआ, अगर बादशाह सलामत ने इसी तरह की सखावत जारी रखी कि एक बोरी खरबूजों की कीमत एक बोरी अशरफियों और जवाहरात की सूरत में अदा करते रहे तो फिर खजाने का खुदा ही हाफिज है। किसान की खुशी को चंद सौ अशरफियाँ भी बहुत थीं। अगर हुजूर बुरा ना माने तो अर्ज करूं कि एक मामूली से किसान को इतनी बड़ी दौलत अता फरमाकर आपने कुछ अच्छा नहीं किया। ये खानाजाद सल्तनत का खैर खा है। जहां कमज़ोरी देखेगा, जहां पनाह को उससे आगाह करना अपना फ़र्ज समझेगा। आगे हुजूर खुद रोशन ज़मीर हैं, बुरा भला खूब जानते हैं। वज़ीर की बातें सुनकर बादशाह यूं मुखातिब हुआ, तुम हमारे वज़ीर और बातदबीर हो, जो करना था हमने किया, अब तुम जाकर दानिशमंदी को काम में लाते हुए वो सब कुछ वापस ले आओ जो हमने किसान को दिया है।
वजीर घोड़े पर सवार हुआ, उसे तेज दौड़ाकर किसान को रास्ते में जा लिया और हुक्मिया अंदाज में कहा, ठहरो ठहरो। किसान रुक गया और बोला, क्या है? क्या है कि बच्चे, मन भर खरबूजे देकर तुम इतनी सारी दौलत लिए जा रहे हो? ये नहीं हो सकता। ये दौलत मुझे तुमने तो नहीं दी, बादशाह ने दी है। किसान ने अपने खास लहजे में जवाब दिया, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं वजीर सल्तनत हूँ। ये दौलत तुम चंद शराइत के साथ ले जा सकते हो। वजीर बोला, अगरचे मेरे लिए ये जानना ज़रूरी नहीं कि तुम कौन हो, और ये भी ज़रूरी नहीं कि मैं तुमसे इस सिलसिले में बात करूं। ये मेरा और बादशाह का मामला है। बहरहाल शर्तें बताओ। पहले मेरे 3 सवालों का जवाब दो। वजीर ने कहा, मेरा पहला सवाल यह है कि आसमान पर कितने तारे हैं? वजीर ने कहा। किसान ने गधे की पीठ पर हाथ मारा और कहा, जितने इस पर बाल हैं। इसका कोई सबूत? वजीर ने पूछा। दोनों को गिन लो, अगर एक भी कम पड़े मैं कसूरवार हूं। किसान बोला। वजीर ने लाजवाब होकर दूसरा सवाल कर दिया, बताओ जमीन की नाव कहाँ है? किसान के पास एक छोटी सी बर्छी, जिसे वो लाठी के तौर पर इस्तेमाल किया करता था। उसने वो बर्छी जमीन में गाड़ कर कहा, ये रही जमीन की नाव। चारों तरफ से जमीन को माप लो, जरा बराबर भी कम निकले तो मैं कसूरवार हूं। इसका भी वजीर के पास कोई जवाब न था। वजीर का तीसरा सवाल था, खुदा इस वक्त क्या चाहता है? किसान ने कहा, तौबा तौबा, खुदा की इस हालत में कैसे बात हो सकती है कि तुम एक आला नस्ल के घोड़े पर सवार हो, निहायत कीमती लिबास पहने हुए हो। मैं एक मामूली दर्जे का किसान, फटे पुराने कपड़ों में मरियल से गधे पर बैठा हूं, जो ढिचकू ढिचकू करके चलता है और मुश्किल से दिन भर में 2 कोस फासला तय करता है। भला इस हालत में खुदा के बारे में क्या बात कर सकता हूं? मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। वजीर बोला। अपने सवाल का जवाब चाहिए हो तो एक काम करो। किसान ने कहा। वो क्या है? वजीर ने पूछा। यह कि तुम घोड़े पर से नीचे उतरो, अपना लिबास मुझे दो और मेरे कपड़े तुम पहनो और इस गधे पर सवार हो जाओ। फिर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देने के काबिल हो सकता हूं। मैं तुम्हें बताऊंगा कि खुदा इस वक्त क्या चाहता है। वजीर घोड़े से नीचे उतर आया। किसान ने वजीर का लिबास पहना। वजीर ने किसान के कपड़े पहने और गधे पर बैठ गया। किसान ने झट से गधे से बोरी उठाई और लपक कर वजीर के घोड़े पर सवार हो गया। अशरफियों और जवाहरात से भरी बोरी सामने रखी और एड़ लगाकर घोड़े को दौड़ा दिया। जाते जाते उसने वजीर से कहा, खुदा इस वक्त ये चाहता है कि मैं तुम्हारा लिबास पहने इस शानदार घोड़े पर सवार होकर बादशाह की अता की हुई दौलत के साथ अपने गांव वापस जाऊं और तुम मेरे कपड़ों में मलबूस इस गधे पर बैठकर दरबार में लौटो। समझ गए ना? मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें।